See, at Wander On, at Scene Kya Hai, we are not promoting all of this. Anything, yes. These are just personal experiences of people, their own choices and decisions, Yes, please. yes. हाँ, And also it was in Thailand, not in India. So yes. whatever. वाह. इनके साथ में एक कहानी है कि इनको होटल्स ने अपने रेस्टोरेंट से बैन कर रखा है, तो अपना पेट जुगाड़ तो करना पड़ता है। बॉडी बहुत मेंटेन है, बहुत टफ होकर निकले। जिसके अंदर से एक स्टोरी शायद ऐसी भी है कि शायद तुमने एक रात जेल में भी निकाल लिया। पता है क्या, वो तो मेरे से बोल रही है कि मुझे भाई कोई बंदा अभी ला दो, मैं उसके साथ जो है ना सेक्स कर लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी. What? और टेम्पो खाली करना था, पीपल वर वेट। People were what? देखो आर्मी लोग बहुत बढ़िया है, फुल सपोर्ट। बिना नहाए कितने दिन रहे हो मैक्स? वही 1.5 महीना। वहाँ पे भी तो देख रहा हूँ आसपास में लोग पड़े हुए, ऐसा मुझे लग रहा था मरे बड़े हुए हैं क्या. दिस गाय नॉट फीलिंग गुड, प्लीज एडमिट, चेक. ट्रिप कैप्टन्स का काम बाहर से बड़ी हंकी डोरी लगता है कि घूम रहे हो। जब लैंडस्लाइड हो रहा है तुम्हारे सामने स्टार्ट हुआ है कि वेट करें कि चीज़ें नॉर्मल हो या निकल जाए? मैंने शिवा को बोला, शिवा फट मेरे गाड़ी के पीछे बैठ, फुल हम लोग वी हैव टू गो फॉर इट, मतलब अब हमको अभी ही निकलना है। So that's a call you take. हाँ, कॉल। Do you have any story that you feel कि it's like you cannot reason it, but तुमने experience किया है? सो मैं जब वापस आ रहा था, there was a bike in front of me, might be around 200 meters in front of me. अब मैं इसको पकड़ ही नहीं पा रहा था। अब मैंने उनसे पूछा कि ये बाइकर कहाँ पर है जो गया, वो कौन है बताओ, कहाँ गया? तो कोई बाइकर नहीं आया। आप वो बाइकर पिछले 2-2.5 घंटे में। तो वो जो बाइकर था वो वॉज अ गोस्ट राइडर। यस, गोस्ट फिजिकल फॉर्म में नहीं आते हैं, आपको हेलुसिनेट कराते हैं। दे कॉल यू टूवर्ड्स देमसेल्फ, दे कॉल यू टूवर्ड्स डेथ। तब मैं केदारकांता ट्रैक में था, तो वहाँ पर वी यूज्ड टू टेल आवर गेस्ट्स एज वेल, आपको पहाड़ बुलाएंगे। तो एक बार ऐसे ही पहाड़ ने बुलाया, ऐसे किसी की अलग आवाज़ में, बचाओ, ऐसा मतलब। We used to stay at these family-run, princely-run hotels, and this place was around 200 years old or 250 years old, and it had history about it. Then the guard asked me in a very weird sort of a way, which I did not think about until the next day. He asked me if I was afraid. If you have good energies, then you also have bad energies. It houses energies, na? Hello ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to another episode of Scene Kya Hai, Wander On ka apna travel podcast. Now this episode is a little different and a lot more special because we don't have just one but 3 guests today, which means there is not just one story to share but many. Raw, emotional, scary, terrifying, funny, all coming from the heart of the people who live and breathe travel each day, every day. Yes, I'm talking about the trip captains at Wander On. You see, behind every smooth trip, every perfect bonfire, and every sunrise trek, there are these superheroes who are working day in and day out. So, we are going to move into this episode a little differently. I'm going to invite these 3 guests one by one so that we have all the time and years to dive into their adventures individually. Without further ado, let's dive into the adventures of Ahan. Ahan, welcome to Scene Kya Hai? Thank you, ma'am. Hi. So first of all, my name is Aditya Raj. I am from Delhi. I currently stay in Gurgaon. I am a second gen professional traveler because my dad is not a trip captain, but he goes on trips, and yeah, so I have been going on trips since I was very young. So yeah. And how old are you now? I am 27. Oh, sorry, 28. Yeah, 28. So yeah. So and like even my mom, she used to go on treks and all. So I've been blessed with a very travelful family. So Travelful family. Travelful family, yeah. Nice So, word, travelful family. कितने सालों से कर रहे हो travel in terms of professional? uh, if you don't count the COVID years, 7. Because I don't count it because मैं travel ही नहीं कर पा रहा था, कोई travel नहीं कर रहा था. हाँ. तो 7 7 years of traveling. of professional travel. उसके पहले बस में जो travel करा वो तो अलग बात है. ओके. तो आहान, जो मैंने आपकी इंट्रोडक्शन दी कि होटल्स में से आपको रेस्टोरेंट्स ने बैन कर रखा है यार, क्या मतलब व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? देखो, I obviously can't name the hotel because hotel वाला जो the owner and the manager are very good people, but multiple locations में I have had a lot of food, मतलब a lot of food, Okay. which isn't like humanly possible should be for an average human.
ठीक Okay. है, मतलब 1 किलो चिकन एक्स्ट्रा ऑर्डर करते थे और वो भी ख़त्म हो जाता था। तो Okay. हाँ, तो वैसा कुछ। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद द होटल गाय ही गोज़ टू द जिम। तो जिम के आने के बाद ही हैज़ हिज़ सैंडविचेस, ही हैज़ हिज़ एग्स एंड सब कुछ पूरा डाइट होता है, जिम वाली डाइट। तो वो भी मैं पूरा ख़त्म कर लेता था। द पर्सन द होटल ओनर गॉट बिट पिस्ड ऑफ कि ब्रेकफास्ट भी ख़त्म, उनका फूड भी ख़त्म, राशन ख़त्म बेसिकली। Okay. तो कोई भी गुस्सा ही होगा, ही टुक द राइट स्टेप। अगर मैं होता मैं भी यही स्टेप ले लेता। अच्छा. देन देयर इज अ कैंप साइट इन पैंगोंग, उनने तो रहने से भी मना कर दिया। ऐसा कि- क्यों? जो क्या होता है ना, वो पैंगोंग की बात है। सो एज ए ट्रिप कैप्टन वी समटाइम्स डोंट गेट फूड बिकॉज वी हैव अ Okay. लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। हाँ. बाइक पंचर हो गया, किसको चोट लग गया, ऑक्सीजन कम हो गया, हमेशा हम फर्स्ट होते हैं। और क्या होता है, पहले कस्टमर्स खाते हैं, भूख बहुत लगी है, बहुत भयंकर भूख लगी है, बट पहले आप। और वो लखनऊ के लोग के लिए सही है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मुझे पहले आप नहीं करने आता, पर करना पड़ता है। तो मैंने करा, तो पहले गेस्ट लोग ने खाया, अब मेरी बारी आई, मैं खा रहा हूँ, बहुत खाया। तो जो मेरे को कैप्टन्स थे उनके अकॉर्डिंग मैंने 40-50 के आसपास रोटीज़ खाए, और इसलिए मैं काउंट नहीं करता। बट Okay. इतना मुझे पता है कि आटा ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए पराठे बनने थे, और तो फिर पूरी वूरी बनी, आई थिंक सो, या कुछ और बना, पोहा बना था। Okay. So, matlab on that note, now let's actually dive into your most interesting travel stories. What would you like to tell? Because I have received a list of things Yeah. that आहान के साथ में ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, जिसके अंदर से एक स्टोरी शायद ऐसी भी है कि शायद तुमने एक रात जेल में भी निकाल लिया है। हाँ। तो थोड़ा बताओ यार, क्या कहानी है? अपनी सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए। So yeah, starting off with the jail story. This was my first year leading trips of Ladakh. Okay. So this was my second batch. No, my first batch अच्छा. of Ladakh. So we started from Manali, पूरा trip complete करा. We crossed जोजिला में बहुत ट्रैफिक हो गया था. I don't know the reason, बहुत पहले की बात है. So we reached like Dal Lake very late. ठीक है. अब the backup vehicle was the tempo. बाइकर्स के साथ मैं था. वी रीच्ड, सब कुछ सामान को भेज दिया, और टेम्पो खाली करना था. पीपल वर वेट बिकॉज टेम्पो पीछे था, सब कुछ हो गया था. People were what? वेट मतलब भीग हो गए थे. अरे मतलब बारिश आ गई थी, मतलब वैसे नहीं, अरे हो ऐसी बात नहीं है, मतलब भीग गए पानी, पता ही है, ड्रेंच्ड. Okay, okay, हाँ, ड्रेंच्ड. हाँ. तो बारिश आ गई, गीले वीले हो गए, बढ़िया एकदम. नॉट बढ़िया, नॉट सो बढ़िया, पर ठीक है. तो जो भी है, तो टेम्पो में सामान निकाल रहे थे, और आप लाइक एट द लेक ट्रैफिक हैज टू बी मूविंग. आप पार्क वाक नहीं कर सकते. मैं ड्राइवर को बोला, ड्राइवर वहीं का कश्मीरी था. मैं बोला कि भाई कर दो, ये कि यहाँ पर दूर में पार्किंग होता है, फिर वहाँ से आप सामान लेके आओ तो बहुत लंबा. ड्राइवर को बोला कि भाई आप रोक दो. उसने बोला कि भाई वो राउंड मारते वो आर्मी के लोग, कुछ हो तो आपका नाम लूंगा. मैं हाँ भाई, इस बजे कौन राउंड घूमेगा, आर्मी तो राउंड मारते रही रात को, दिन में करे तो करे. तो मैंने आई टुक द चांस. पर तभी वो CISF के CRPF के वो जो घूमते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, वो घूमे, एंड 2-3 बैग्स ही बाकी थे. तो दे स्टॉप. और फिर पहले उनको दे कॉट होल्ड ऑफ द ड्राइवर कि फिर कुछ बात कर रहा कश्मीरी में, मुझे नहीं आता कश्मीरी. तो बोला फिर ठीक है, जैसा बोला. फिर ड्राइवर ने मुझे तरफ पॉइंट करा, ये मैं बोला मैं कौन, ठीक है. तो फिर ड्राइवर की तरफ पॉइंट करा. मैंने बोला कि हाँ भाई मेरे लोग हैं. तो और वो बंदा आर्मी का, देखो आर्मी लोग बहुत बढ़िया है, फुल सपोर्ट, ठीक है, बट फुल सपोर्ट एब्सोल्युटली. बट वो बैग्स जो नीचे पड़े थे उसको भी ऊपर डाल रहे थे. मैंने ऊपर क्यों डाल रहे हो आप? 2-3 बैग्स नीचे के ऊपर है, वो खाली कर तो फिर हम चले जाएंगे. प्लस यार नो लिखा है पार्किंग, नो स्टॉपिंग, नो हॉल्टिंग, आपने मेंशन नहीं करा. तो एक्चुअली मैं रूल ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, और मैं अड़ियल, वो ऑफिसर आदमी, उनको इतना काम होता है 20 वर्ड प्ले पे नेगोशिएट करना चाह रहे थे. आर्मी लोग के साथ जो 20 घंटे काम करते हैं हमारे लिए, उनका स्ट्रेस लेवल लाइक डिफरेंट है. तो बस मैंने गुड यू रियलाइज दैट. हाँ. तो अब रियलाइज करा. एट द टाइम आई वाज वेरी यंग, मैं रियलाइज नहीं कर पाया था. तो बस आर्मी लोगों ने बोला कि तू माफी मांग ले और वहीं पार्क कर ले. मैंने बोला गलती किया ही नहीं, माफी क्यों मांगू. वही सबसे बड़ा मिस्टेक था. ऐसे हाथ को मोड़ा, टेम्पो में ऐसे किया, धर मारा. मतलब ऐसे नहीं कि मतलब नॉट लिटाया, तो टेम्पो को ये ना शीशा ऐसे करा, और फिर मरोड़ा जेल लेके गए.
फिर रुकाया रात को, मैंने बोला मैंने करा क्या है, और तू रुक यहाँ पर, तू रुक, तेरे को देखता हूँ मैं, तू हो कौन। हाँ 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 तो फिर कुछ क्राइम नहीं किया मैंने एक्चुअली, बट वो उनका ईगो हर्ट हो गया था, जो जायज़ है आई थिंक सो। बट यू वर बीइंग अ न्यूसेंस ना फॉर आई देम वॉज टोटली 100%। मैं वैसे भी, लेकिन ऑन अ नॉर्मल डे लाइक आई एम ए न्यूसेंस, और तब तो मेरा भी स्ट्रेस माथे में पड़ रखा था। एक लोग यहाँ पर है और कुछ लोग 100 किलोमीटर पीछे हैं बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से, तो मेरा और स्ट्रेस हो रखा, तो मैं और न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था। बिकॉज इफ यू आर स्ट्रेस्ड, आप स्ट्रेस और ओवरफ्लो कर देते हो ना, तो मेरा बकेट ऑफ स्ट्रेस भर चुका हाउ था। प्रोफेशनल, सो प्रोफेशनल ऑफ योर हैंड। फर्स्ट ट्रिप, Okay, all right. दिस वाज We'll give you a फर्स्ट ईयर, leeway. We'll give you a leeway. हाँ. दिस इज डाउन बैक 7th ईयर। अभी आप मैं ट्रिप में आओगे, ऐसा नहीं होगा। Okay, Hopefully. okay. फिर नेक्स्ट डे आए होटल ओनर, उनको मालूम पड़ा ये सीन हुआ, तो हो गया। फिर उल्टा उन्होंने डांटा उनको, मैंने बोला मेरी गलती, वो उनके आपस की बात है, मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला सॉरी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे खाली छोड़ दिया, थैंक यू सो मच, मारा नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा। So that was your first trip's story, initial trip story. My first Ladakh trip story. Okay. I didn't start with Ladakh. I had experience of mountaineering. Funny, I started off with school camps. Then I went for rafting. Then I was into mountaineering. Then into biking. Okay. मैं जैसे मैं चादर ट्रैक में था, like for 1.5 months there is no like water, so we To consume, हाँ to consume हाँ water. जैसा भी है, हाँ आपको चाय पीना है, फट पीना है, वरना फ्रोज। हाँ हाँ तो वैसा। हाँ। तो बताओ थोड़ी चादर ट्रैक की और क्या स्टोरीज है चादर तुम्हारे ट्रैक का पास में, तो- कुछ है इंटरेस्टिंग? चादर ट्रैक तो हाँ, देखो तो बिना नहाए कितने दिन रहे हो मैक्स? वही 1.5 महीना ओके, चादर पे। चादर ट्रैक में। नहीं, वो वी वांटेड टू टेक बाथ। आई एम नॉट डाउटिंग नहीं दैट। मतलब मैं आप लोग की बात कर रहा हूँ, अगर आप भी मेरे सिचुएशन में होते, आप लोग भी नहा नहीं पाते। नॉट लाइक सेइंग कि हम लोग जानबूझ के पड़े हुए हैं, अच्छा नहीं लगता, बट हम लोग क्या करते थे, सैनिटाइजर लेते थे और खुद को वेट वाइप से ऐसे खुद करते थे। हाँ वही करते थे नहाने का। देखो आपका क्या है, पहले आपको नहाने के लिए आप प्रॉपर्टी के बाहर जाओ, पेड़ काटो, पेड़ लेके आओ, आग लगाओ, वो आग जले, पानी गर्म हो, यू गो टू योर वॉशरूम, फिर आप नहाओ। और नहाने का भी वही है, यू कैन टेक वेरी लाइक स्मॉल बाथ्स क्विक, हाँ। बिकॉज आप नहाओगे फ्लोर गीला, आप गिर गए, आपकी मौत। पर मौत तो नहीं, पर आप ओके, आई थिंक वो फरस आइस का हो गया ना, तो या पर मौत तो नहीं, मतलब बट जस्ट टेकिंग, चोट लग सकती है। Okay, very extreme to think. 1.5 months couldn't take a bath. So there is one more thing that I got to know, that you have something around hallucinations also. Have you experienced hallucinations on your that trip? also happened in Ladakh. Okay. So all my stories, if you see, so I just like in general, तो ट्रिप कैप्टन्स का काम बाहर से बड़ी हंकी डोरी लगता है कि घूम रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल। व्हेन थिंग्स गेट टफ एंड थिंग्स गेट आउट ऑफ योर हैंड, वी आर द फर्स्ट टू गो आउट ऑफ हेल्प, टू बी ऑफ हेल्प, to sacrifice ourselves. Coming back to the story, this happened in Changla. Changla is a pass between Leh and Pangong. ठीक है, तो you were coming back from Pangong to Leh. This was also before pre-COVID. I don't know the year, पर 18 या 19 रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग चांगला पास के जस्ट 5 किलोमीटर पहले हम लोग थे, एंड स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका था। एंड बाय द टाइम वी रीच द टॉप, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लिजर्ड प्रॉपर, मतलब ऊपर से बर्फ़ पड़ तो रही है, बट साइड से जो बर्फ़ और हवा चल रही है, थप्पड़ मार रही है ऐसे। ठीक है, मतलब प्रॉपर, अगर आपने स्नोफॉल देखा है प्रॉपर जेन्युइन, तो ऐसे ही फील होता है। तो या तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गया था, एंड 2 ट्रक्स दे वांटेड टू गिव ईच अदर द वे। Okay. तो आप राइट से, आप लेफ्ट से ऐसे जा रहे थे, और वॉल्स ऑफ स्नो था, नॉट लाइक ह्यूज वॉल्स, बेसिक 3-4 फीट का वो स्नो वॉल था साइड्स में। दोनों ने दूसरे को रास्ता दिया और दोनों साइडवेज हो गए, कोई रास्ता इतना छोटा था, तो दे वर लेफ्ट आउट ऑफ स्पेस रोड, तो दोनों ही साइडवेज हो गए, तो ट्रैफिक रुक गया। फिर स्नो तब भी हो रहा है, स्नोफॉल हो गया, एंड लाइक इवन द ट्रक्स वर, उनके जो 50% पार्ट है उसके ऊपर भी स्नो चला गया था। Okay. So me and the backup driver, we stayed back, and because we had 20-25 bikes, that's the usual, like the average number of bikes that we that the company I used to work for, उनका यही average था। sorry. So
हमने उन लोग को भेज दिया। जो बैकअप वाला था ही वाज आल्सो लोकल, तो उसके अपने मालिक को जॉब देना था कि मैं बैकअप ड्राइवर अपना गाड़ी छोड़ के नहीं आ सकता वगैरह हाँ वगैरह। हाँ हाँ तो और गेस्ट को हमने भेजा विद माय को कैप्टन एंड द मैकेनिक। तो वो लोग चले गए लीविंग देयर लगेज, लीविंग द बाइक्स एंड एवरीथिंग। तो वी हैड टू स्टे बैक बिकॉज ऊपर टॉप पे 70-80 लाख का सामान था, बाइक्स और उनका सूट के सब कुछ मिला के ऊपर था। तो समवन हैड टू बी वायबल और लायबल लाइक अबाउट दैट, लाइक दोस थिंग्स। तो हम ऊपर रुके थे, आई थिंक 35-36 आवर्स हम टॉप पे थे at a height of 17,000 at a pass that where you're not even supposed to like Yeah, you know stay for I think yeah, what 15-20 minutes max, इतना ही टाइम देते हैं हम ट्रैवलर्स को हाँ, बिल्कुल। कि बस पिक्चर क्लिक कराओ एंड देन यू मूव। हाँ या 20 मिनट्स मैक्स, उतना टाइम। तो हम तो 35-36 आवर्स थे। हाँ तो ऑक्सीजन दिमाग से कम होते गया। पहले तो ठंड वंड तो छोड़ो, ठंड तो लगती वो सबको लग रखी है, तो आई वोंट कम ऑन दैट पार्ट। बट ऑक्सीजन जैसे कम होता है, यू आर वेरी रेस्टलेस, यू डोंट नो व्हाट टू डू, कि ऐसे बैठना है, क्या करना है, सोना है। आप you want to sleep but you don't want to sleep. You are very mixed feelings, like a lot of feelings are going on at the same time. After this ends, आपका ना सामने से ऐसा लगता है क्लाउडी हो गया। आपका your vision your vision gets like blurry. And after that जो मुझे याद है that मैंने अपने परछाई से दोस्ती कर ली थी। तो मैं जब नीचे पहुंचा, आई आस्क्ड द बैकअप ड्राइवर्स, हमको पहले मेडिकल सेंटर ले गए, कुछ डेक्सा वेक्सा लगाया, ठीक वीक हुए। देन आई स्पोक विद द बैकअप ड्राइवर कि भाई तू ठीक है, वीक है, सब कुछ ऑल गुड, सब एवरीथिंग वाज ऑल गुड, लाइक बाइक्स वर ऑल गुड, द सूटकेस वर रेडी, सब कुछ ठीक हो गया था। बट या वही, but you made a new friend. I made a new friend. I asked him कि भाई हम दो तो हैं, वो कहाँ पर है? बोला कौन वो? बोला यार उसका नाम बोल रहा है यार, मेरे साथ में से घूमता था, हम वही तो मेरे दोस्त बने थे ऊपर। बोला कोई नहीं था भाई, तू अपने परछाई से बात कर रहा था। Okay. तो ये hallucination है। पर तुम मानते हो ये कि ऐसा ही था? अब मैं तो दोस्त ही मानूंगा अपना, बट उसने ऐसा। आज तक you will keep that memory as कि तुम्हारा दोस्त था? Absolutely yeah. आज दोस्त का नाम देना होगा तो क्या दोगे? मैंने नाम दिया था। मैं जब नीचे आया था, when I came back to Gurgaon, I continued with the like the imaginary friend जो भी मेरे imaginary, मैं मान लिया कि ठीक है imaginary तो imaginary से ही। I used to prank my दादी कि यार आराम से यहाँ मत बैठो, यहाँ पर वो बैठा है। कुछ गोपाल नाम था या पता नहीं क्या नाम था, I don't remember the name, मेरे दादी को पक्का पता होगा। वो बड़ी फूक आउट होती है, वो आराम से, वो बैठती भी नहीं थी यहाँ पर ना, ठीक है, नहीं यहाँ पर तो ये स्पॉट तो ना उसका गोपाल का स्पॉट है, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। तो बस you're coming off as a very scary person. I am devil. तो फिर अच्छा, this is about hallucination, like it's hallucination now, it's a very scientific concept, you have reasoning for that. Do you have any story that you feel कि it's like you cannot reason it but तुमने experience किया है? कुछ है ऐसा encounter, कुछ भी supernatural or anything that may have happened? Reason it. So I started like this was a bike trip to Spiti. Started from Kalpa, went with the batch to Kaza batch को छोड़ा। फिर कंपनी ने कॉल करा, नहीं भाई यहाँ तेरे लिए एक और बैच है, तू नीचे यू कम बैक टू ये रामपुर द नाइट। सो पूरा दिन राइड करके अराउंड 240-220 kilometers, I had to come back to 70-80 kilometers, 500 kilometers of ride in one day। ठीक है, वो तो बहुत बार कर रखा है, बट ये रात का टाइम था, प्लस I was not prepared for it। ठीक है, there was a bike in front of me, I'd been around 200 meters in front of me, और ऐसे कुछ distance में था, अब मैं उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था। अब जब आप you're with the group, you have to maintain a speed की, ठीक है, you have to take care of the people, mirror check करना है, convoy को साथ move कराना है, you have to check with the backup or the your the tail rider, सब आ रहे नहीं आ रहे, सब ये, you have to maintain the speed, like I always say, I will be as fast as the slowest rider। slowest rider का speed अगर 100 है तो मैं 100, अगर आप 20 है तो मैं 20। ठीक है, अब वहाँ पर मैं अकेला हूँ तो मैं भगाऊंगा ना, फटाफट पहुँच, फटाफट आराम करूंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस आई हैव टू कम बैक टू काजा। अब कल्पा, काजा रामपुर फिर अगेन टुवर्ड्स और चिटकुल। चिटकुल था तो चिटकुल
तो आगे बाइकर था, मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा था. आई वॉज वेरी एंग्री, लाइक एंग्री विथ माई सेल्फ. पकड़ कैसे नहीं पा रहा, सू भगा रहा हूँ, मैं पकड़ ही नहीं पाया. फिर एक चेक पोस्ट आता है, वो जो कल्पा का चेक पोस्ट नहीं होता, गेट ऑफ किन्नौर का, वो चेक पोस्ट के पास मैंने रोका. उसलिए एंट्री तो करूंगा, उन्हें रोका. अब मैंने उनसे पूछा कि ये बाइकर कहाँ पर है जो गया, वो कौन है, कहाँ गया. तो कोई बाइकर नहीं आया. आप हो बाइकर पिछले 2-2.5 घंटे में, पिछले 2-2.5 घंटे में सिर्फ गाड़ियाँ लाइक आई है. तो वो जो बाइकर था वो वॉज अ गोस्ट. सो बेसिकली Ghost rider. घोस्ट राइडर, यस. तो जैसे कि जो घोस्ट स्टोरीज होते हैं आप जो सुनते हो इन जनरल, जो स्पूकी स्कैरी हॉरर स्टोरीज होते हैं, घोस्ट फिजिकल फॉर्म में नहीं आते हैं, आपको हेलुसिनेट कराते हैं. दे कॉल यू टुवर्ड्स देमसेल्व्स, दे कॉल यू टुवर्ड्स डेथ और टुवर्ड्स अननेचुरल थिंग्स. तो ऐसे माउंटेन कॉलिंग होता है. मैं तो केदारकांता ट्रैक में था, तो वहाँ पर वी यूज्ड टू टेल आवर गेस्ट्स एज वेल, आपको पहाड़ बुलाएंगे. ठीक है, मतलब मान लेते हैं अगर आप और मैं वी आर टेंट मेट्स, ठीक है, आप गए, I like the word tent mates. या टेंट मेट्स, तो हम लोग लाइक वी आर द टेंट मेट्स. आप गए वॉशरूम, ऑब्वियसली मैं आपके साथ तो नहीं जाऊंगा, ठंड है, मैं अंदर गर्म में रहूंगा ना. नहीं मतलब साथ मतलब नहीं, बिकॉज वॉशरूम दूर होता है ना, वो 50-60 मीटर होता है दूर ना. तो आइडियल सिचुएशन में हम बोलते हैं कि आप दोनों जाओ, एक रहेगा इन द टेंट के अंदर और एक बाहर रहेगा, चौकीदारी रहेगा. बिकॉज रात का समय है, आइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आप प्योर इन द विल्डर, आप वाइल्ड में हो प्रॉपर, कुछ भी हो सकता है. तो वो इज द बेस्ट इफ यू कैन डू इट. आप चौकीदारी देना, पर वो नहीं हो सकता तो एटलीस्ट टेल योर टेंट मेट कि मैं 5-10 मिनट में आऊँगा. तो एक बार ऐसे ही पहाड़ ने बुलाया, ऐसे किसी की अलग आवाज में, बचाओ, ऐसा मतलब ऐसे तुम्हें? हाँ बचाओ, ऐसे कोई मुझे ऐसे वो कलेक्शन नहीं, कैसे आवाज, तो आवाज में बोल नहीं पा रहा मैं ना. वो एक आप अगर जाओगे आपको आवाज आएगी तो बोलोगे हाँ ये ऐसे आवाज ही होता है, बट हेल्प, बचाओ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं. सो यू गो टुवर्ड्स इट. अब मुझे पता है मैं और आगे जाऊंगा, यहाँ पर ब्लैक आइस है, फिर खाई है, बिकॉज मैंने ही कैंप साइट सेट करा है. हम जाके कैंप साइट बनाते थे कि ये कैंप साइट है, यहाँ स्ट्रीम आ रहा है, यहाँ अच्छा साइट है कैंप साइट बनाने का, बिकॉज हमको स्ट्रीम के पास ही बनाना है, वरना फिर किचन उगले बहुत टफ बन जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग कैंप साइट हम ही चूज करते हैं, द ट्रैक लीडर्स विद द किचन स्टाफ. तो हमको पता है कि ये हमारा जोन है, यहाँ पर खतरा है, तो मैं आई जस्ट केम बैक. बट इफ इट वाज समवन एल्स, तो वो सके चले जाते हैं. तो दीज हैपेंस, स्कैरी स्टोरीज ऐसे होते हैं, दे पुश यू टुवर्ड्स डेथ. या और माउंटेन्स में तो बहुत ही ज्यादा, बिकॉज वहाँ पर अनटाइमली डेथ काफी कॉमन रहता है इन द माउंटेन्स. लैंडस्लाइड हो गया, आप ट्रैक करते हैं. Plus, it is a very high energy zone. So, Absolutely. like, if you have good energies, then you also have bad energies. It houses energies, na? It's a safe space for energies. Very interesting, Ahan. तो बस यही था. ठीक है. Ahan, thank you so much for sharing such, I do not know, amazing but weird stories that you have. I think you are a treasure box of all of these stories, and I hope you keep collecting more such experiences that are memorable, safe, and just add, to the beauty of your life. So thank you so much for joining on Scene Kya Hai, Ahan. Welcome, ma'am. If there's someone who has truly handled the chaos of group trips, it's my guest Prashant. From cloudburst to emotional burst, this guy has seen it all. And recently he's been frequenting the trips to Thailand. So that means he has quite some stories to share. So please welcome Prashant. Prashant, welcome to Scene Kya Hai. Hello, thank you, ma'am. Thank you. Hello, everyone. I'm Prashant, and I have been working with Wander On since 3.5 years now, and I have been an avid traveler now since 5 years. I've done my own trips, and most of the trips which I have done, honestly, 95% of the trips I have done it professionally, like leading the batches and all. So this one thing which is very common around when you go on a community travel, that कि आपको ना किस्से कहानियाँ बहुत मिलती है. हर ट्रिप से कुछ ना कुछ एक मेमोरीज जो है ना वो जुड़ी होती है, एंड you have a lot of things to share to the people, right? So okay, as I told कि आप थाईलैंड बहुत जा रहे हैं, तो थाईलैंड क्या करने जाते हैं आप प्रशांत, बताइए. बस बुला लेता है थाईलैंड मुझे, तो क्या मतलब बात है. लोगों को मैंने माउंटेन्स आर कॉलिंग सुना है, थाईलैंड इज कॉलिंग. थाईलैंड इज कॉलिंग. यस, थाईलैंड बहुत अच्छी जगह है मैम. अच्छा, क्यों अच्छी जगह है थाईलैंड? लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं.
ठीक है मैम। you have been going to the full moon parties at Thailand, yes? थोड़ा तो बताओ कि what are full moon parties and what interesting stories you have around that, because I'm very sure कि scenes तो crazy होते हैं. तो द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू फुल मून पार्टी तो मैंने देखा एक 300-400 मीटर का स्ट्रेच है बीच का विच इज़ कॉल्ड हादरिन बीच, एंड वहाँ पे एटलीस्ट 50,000 पीपल आर गैदरिंग एंड डांसिंग, कि सब कुछ भूल रखे हैं कि कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं। कोई स्ट्रेंजर्स के साथ कोई डांस कर रहा है, कोई फायर शो जो है ना उस पर जंप्स कर रहे हैं, किसी का कुछ हो रखा है, किसी देयर वाज अ टाइम लाइक आफ्टर 3 AM एट द टाइम जब मैं डांस करते करते थक गया, मैं सोचा मैं थोड़ी देर सुकून से जाता हूँ बीच के साइड में बैठूंगा आराम से, आई विल एंजॉय दिस बीची वाइब यू नो। तो वहाँ पे भी देख रहा हूँ आसपास में लोग पड़े हुए हैं, ऐसे मुझे लग रहा था मरे बड़े हुए हैं क्या, जा करके लोगों को देख रहा हूँ भाई, हाँ भाई क्या हो गया, देख रहे हैं सांसें वासें चल रही है, बस बंदा एकदम बिल्कुल ही आउट हो रखा है, जॉम्बीज बने पड़े हुए हैं, किसी का मुंह जो है ना वो नीचे पड़ा हुआ है, कुछ भी हो मुंह रखा है। नीचे पड़ा हुआ है. हाँ लाइक क्रेजी सीन्स। मैं बोला भाई ऐसी भी पार्टियाँ चलती है बताओ। हाँ. अब ना क्या होता है कि जब भी व्हेन यू आर टेकिंग अ बैच टू दीज नंबर ऑफ इन लाइक इन बिटवीन अ क्राउड ऑफ लाइक मोर देन 50-70,000 पीपल, तो आपको लोगों को गाइड करना होता है दैट व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू डू ओवर हियर एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू आर नॉट सपोज टू डू ओवर, ठीक है। तो एक अच्छी ब्रीफिंग करके सबको बताया कि भाई क्या नशे करने हैं वहाँ पे और क्या नशे नहीं करने हैं, क्योंकि वहाँ नशे के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सब लोग यहीं पे करने आते हैं। पर वो बैच के लोग, वी एज अ कैप्टन, हम लोग जो मना किए, भाई तुम्हें मशरूम नहीं करने, मशरूम करूँगा, हाँ तुम्हें वहाँ ये नहीं करना है, वो करूँगा, जो भी मना किया सब कुछ लोगों ने किया। एंड कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज़ पहली बार ट्राई करनी होती है, वो भी ऐसी जगह पे, और उन लोगों को मतलब वी डिटेक्ट कि हाँ खुद ही आते हैं पूछने के लिए। और प्रशांत भाई बताओ कि क्या सीन रहता है फुल मून का, क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे सीन करना क्या है, है? सीन क्या है। मैं बोला भाई चुप रहा दारू पियो, डांस करियो और कुछ भी मत करना। हाँ. तो अब हम लोग एक बार में डांस कर रहे हैं, लाइक ग्रुप के करीब 10 लोग थे, कोई पोल पकड़ के डांस कर रहा है, कुछ भी क्रेजी चीज़ें हो रही है। इट्स अ वेरी वेरी हैपनिंग पार्टी, बहुत ही वाइब्रेंट कलर की पार्टी होती है, सब लोग नियॉन पेंटेड होते हैं, हाँ. हाँ. सो बहुत ही हैपनिंग होती है, एंड एवरीवन वर डांसिंग ड्रिंकिंग एंड ऑल। और तभी मैं भी पोल पकड़ के डांस कर रहा हूँ बढ़िया एकदम, मैं भी अपने फ्लो में हूँ कि चलो भाई मज़ा आ रहा है। अचानक मैं घूमते 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 देख रहा हूँ कि एक लड़की वहाँ रो रही है, तो मुझे देखा ये तो अपने ग्रुप की है। हाँ. मैं गया वहाँ पे पूछने के लिए, तो शी स्टार्टेड बर्स्टिंग कि राहुल तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, यू हैव डन वेरी रॉन्ग। मैं सोच रहा हूँ ये राहुल कौन है, क्योंकि राहुल इज अ चीटर. राहुल इज अ चीटर। तो अब मुझे थोड़ी ना पता था, वो तो मतलब 3-4 जो है ना वो ग्लास जिन एंड टॉनिक का जो है गड़क चुकी थी, मुझे पता नहीं था। ठीक है कोई बात नहीं, नशे ही है, कितने देरी होगा, फिर तुरंत जो है ना वो ठीक हो जाएगा। अब हम लोग ने वहाँ पे डिसाइड किया इन अ क्राउड ऑफ 50-70,000 पीपल, ये मेरी खुद की डिसीजन थी, क्योंकि मैंने लोगों को बोल रखा था कि भाई हम लोग तो बहुत मज़े कर, क्योंकि उस टाइम पे ना वो थोड़ा रेन वेन का टाइम ये था, पीपल वर कंसर्न कि यार बारिश में मज़ा आएगा क्या, फुल मून में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बोला भाई बहुत मज़े आते हैं, मैं तो ट्रेन वेन बना करके घूमता हूँ वहाँ पे एकदम 40-40 लोगों का। लोगों ने बोला प्रशांत में ट्रेन बनाते हैं, चलो भाई ट्रेन बनाते हैं, ठीक है। मैं आगे इंजन बना हुआ हूँ, मैं बाकी लोगों को बोला भाई पीछे आ जाओ, बाकी ग्रुप को भी यहीं पे बुलाओ और यहीं से हम लोग ट्रेन बना करके निकलेंगे। मैं ट्रेन बन के निकल गया, पर ट्रेन का इंजन थोड़ी ना पीछे देखेगा कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। मुझे जहाँ जाना था वहाँ का लोकेशन मैंने बता दिया था, ग्रुप पे डाल दिया था, मैं पहुँच गया, पर मेरे पीछे के डब्बे सारे गायब है ही नहीं, कोई भी नहीं है वहाँ पे। और क्या सबसे मेन डब्बा जो एक इंजर्ड डब्बा था ना, वो उसकी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो फिर मैंने उनको मैं लेकर आया, वहाँ पे बैठाया, थोड़ा जो भी मैं कर सकता था, किसी से वहाँ से स्टाफ से नींबू उम्बू ले करके मैंने उनका जूस बनाया, उनको पिलवाया। एंड द पीपल वर वेरी स्वीट ऑफ दैट बैच, वेरी वेरी स्वीट, क्योंकि उनको दिख रहा था कि मैं अकेले जो है ना मैं कर रहा हूँ। एंड पीपल वे सो काइंड कि प्रशांत भाई आप अपनी पार्टी को खराब करो। मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि सालों मेरी चौथी पार्टी है ये, तुम लोगों की पहली है, तुम लोग अपना एंजॉय करो, ठीक है। बट पीपल वे सो काइंड, नहीं प्रशांत मैं आपको नहीं छोड़ूंगा ऐसे, मैं चलूँगा आपके साथ। चलो फिर, तो फिर उनको मैं अब कंधे पे लेकर के, डिस्टेंस वहाँ से वॉशरूम का इट्स मेयरली 30 मीटर, पर हमें वहाँ पहुँचने में कम से कम 10 मिनट लगे, ठीक है। बहुत स्ट्रगल करते हुए, इधर उधर से बचा करके, कुछ भी करते हुए मैं लेके गया वॉशरूम, वॉमिटिंग की, वापस आई। जैसे ही वॉशरूम से हम लोग बाहर निकल रहे, फिर से बोल रही है मुझे वापस से वॉशरूम जाना है,
और ये चला है कम से कम 5 बार, ठीक है, कम से कम 5 बार चला है। एक टाइम पे तो ना वॉशरूम के पास में ना एक लेडी बैठी हुई रहती है, शी वाज कलेक्टिंग 20 बार हाँ, फॉर हाँ, एंटरिंग द हाँ, वॉशरूम। उनसे मेरी दोस्ती हो गई, ठीक है। ओ यू कम अगेन, ओ वेलकम वेलकम, गो गो गो, नो मनी गो गो। यार क्या हो रहा है यार ये? I feel I'm getting cancelled after this episode. तो अब मैं बोला कि अगर लगता है कि अब चलो फिर अब लेट जाओ। अब वो टेबल पे जो है ना वो लेटी हुई, एंड शी वाज वेयरिंग दैट नो बटरफ्लाई वाला जो ये होता है ना, विंग होता है ना, हाँ, हाँ, वो हाँ। वाइब्रेंट सा वो हाँ, दिख हाँ। रहा था एकदम पिंक वायलेट कलर की, हाँ, एकदम हाँ, वो हाँ। लगा करके जो है ना वो चल हाँ। रही है एकदम नशे की हालत में, उसको लेके जा रहा हूँ मैं वहाँ पे एज अ गार्डियन एंजल, एज अ ब्रदर की। चलो मैं मेरी छोटी बहन भी हो सकती है इसके जगह पे, मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा। मैं वहाँ पे बैठ गया कुर्सी लगा करके, मैं अपना आराम से देख रहा हूँ कि लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और मैं फिर देख रहा हूँ इसको कि वो सो रही है, और मैं फिर अपने फ़ोन वोन में जो है ना थोड़ा लग गया। बाकी लोगों को बोले कि तुम लोग इन्जॉय करो, मैं यहीं पे हूँ। इफ़ यू फील अगर आपको कुछ दिक्कत तकलीफ हो रही है तो मुझे यू जस्ट कॉल मी, ठीक है। वहाँ पे जो बार की जो स्टाफ थी ना, वो एक लड़की आती है, बैठे हुई देखती है पहले मुझे, उसके बाद उसको, और फिर बोलती है ओ बटरफ्लाई नॉट फ्लाइंग। मैं बोला भाई कैसे लोग हैं भाई ये लोग। How to see? Because it is everyday scenes for them, no? So yes, chaos happens, पार्टी में तो होती रहती है। Just- Thailand is known for yes, all such things वैसे, yes, हाँ, yes, थोड़ा yes, तो chaotic रहता ही है। yes, and Thailand is very chaotic. But I mean, it's quite a responsibility to handle a place like that, जहाँ पे जनता जाती ही मतलब ऐसा है कि no foundations and fun के लिए, and then you're handling people and you have responsibility. I'm sure it's quite a big challenge. हाँ मतलब of course it's a challenge when someone is putting in the group a photo of a vase and telling you to find her. So it is a problem. हाँ होता है ये थाईलैंड के ट्रिप्स में, तो मतलब होता ही है कि फुल मून नाइट पे कुछ ना कुछ तो Weird होगा ये, हाँ कुछ ना कुछ तो मतलब होना ही है, कोई नहीं आएगा, किसी का कुछ प्रायोरिटीज होगी, किसी की कुछ प्रायोरिटीज होगी। एवरीवन वांट्स टू हैव देयर फन, एंड each and every person have equal right to enjoy as per their definition of enjoyment, right? Has anything ever happened to you, like, let's say a matter of life and death? Because मतलब I've asked the other guests also, क्योंकि आप लोग लद्दाख जैसे terrains में travel करते हो, तो कभी कुछ ऐसा हुआ है? यस, एक बार हुआ था, 2023 की बात है ये। पहला बैच था वो SLM का, श्रीनगर लेह मनाली। और अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली अगर मैं ये करूँ तो हमारे जो सर्किट चलते हैं लद्दाख के ना, वन स्टार्ट्स फ्रॉम श्रीनगर एंड अदर स्टार्ट्स फ्रॉम मनाली, ठीक है। तो जो श्रीनगर से जो हमारे ट्रिप स्टार्ट्स होते हैं ना, सो अगर मैं एक्लेमेटाइजेशन वाइज अगर बोलूँ तो इट इज़ लाइक अ ट्रिप की लोग आराम से वहाँ पे एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप ग्रेजुअली हाइट गेन करते हो, श्रीनगर देन करगिल देन ले, फिर नुब्रा जाते हो, फिर उसके बाद पैंगोंग, फिर उसके बाद सरचू ले, फिर सरचू जाते हो। हाँ, अगर मैं बात करूँ मनाली से, हाँ, तो मनाली से आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्लेमेटाइज करना, क्योंकि आप सडनली आप हाइट जो है ना वो गेन करते हो, हाँ, 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 ठीक है। हाँ। तो श्रीनगर लेह मनाली अब मैंने सारी चीज़ें जो है ना ये की हुई थी कि हाँ ठीक है चलो इतने लोग हैं, ये एज ग्रुप है, ऐसा है। श्रीनगर से स्टार्ट हो रही है तो मेडिकल जो है ना वो चीज़ें मतलब इट विल रिड्यूस टू सम सॉर्ट ऑफ 40-50% कि हाँ चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी। और चीज़ें थी मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज सॉर्टेड टिल द टाइम वी रीच पैंगोंग। पैंगोंग में अब वी कैप्टन्स यूज्ड टू डू कि हर दिन ऑक्सीमीटर रीडिंग्स लेते हैं हाई एल्टीट्यूड ट्रिप्स पे लद्दाख एंड स्पीति, सो जस्ट टू चेक कि आपकी हेल्थ जो है ना कैसे चल रही है, क्या चल रही है। तो अब ये हुआ, अब होने के बाद फिर पैंगोंग में जब मैं ऑक्सीमीटर रीडिंग ले रहा था ना, तो उनका ऑक्सीजन जो है ना वो SpO2 जो है ना रीडिंग आता है 67, हाँ, 67 एंड 78, एंड just to clarify the people कि at the height of 14,000-15,000 feet आपके ऑक्सीमीटर जो है ना वो बहुत कम ही ऐसा चांस है कि आपको 100 जो है ना वो बताएगी जो नॉर्मली आप प्लेन्स पे आप देखते हो। हाँ, क्योंकि वहाँ पे आप उस हाइट पे हो कि ऑक्सीजन पार्टिकल्स थोड़े से सेपरेटेड होते हैं, तो आप एक इनहेल जो आप करते हो ऑक्सीजन, उसमें उतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जाते हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। सो लाइक 85 समवेयर की कभी कभी 80 भी जो है ना वो नॉर्मल रहता है, बट बिलो 80 इज
something that Scary. yes, हाँ. you should know check upon the person that if they are having proper hydration, proper food and all. हाँ. और ये सारी चीज़ें। तो 67 था, मैंने देखा कि खाना खाने से पहले लिया हूँ, एक बार खाना खाने के बाद ले लेता हूँ, तो फिर खाना खाने के बाद फिर 78 आया। तो आई थॉट कि हाँ ठीक है, उनको मैंने बोल दिया पानी वानी पी करके जो है ना आराम से आप सोना, एंड कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। अब पैंगोंग लाइक इन लद्दाख इज़ वन ऑफ द टेरेन जहाँ पे वी एज अ कैप्टन हम लोगों को सजेस्ट करते हैं दैट कि आप लोगों को अपनी बॉडी का ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना होगा एट दैट हाइट। तो लाइक ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर सुबह में उठा तो उनका चेक किया, तो शी वाज नो ओके। हम लोग सरचू पहुँचे, सरचू पहुँचने के बाद फिर तब तक जो है ना वो ठीक थी, मतलब नॉर्मल, एवरीथिंग वाज गुड। बट सरचू से पहले हम लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था। एंड सरचू वाज सुपर स्कैरी एट दैट टाइम। इट वाज विंडी इन द मंथ ऑफ मे। वो ओपनिंग ही होता है वहाँ पे सीजन्स का उसी टाइम पे, क्योंकि उससे पहले बारालाचला बंद होता है, इधर तांगलंगला वगैरह बंद होता है। Sarchu is known for being windy and Right. yeah, scary that way. Yes, and the moment when we entered our campsite, तो camps पूरे एकदम फर कर रहे हैं। So like कोई भी usually the people who are not like very habitual of seeing these terrains and these weathers ना, उनको थोड़ा डर लगेगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पे, है ना। सो थोड़े से लोग जो है ना वो आकर के मेरे पास स्टार्ट कर दिए थे, मतलब वो करना कि यार ये तो बहुत गलत Uneasy जगह, हो रहा है, हाँ, कि बहुत गलत जगह लेके चले लोग तो आए। बोलते हैं haunted भी है। हाँ, है, देयर इज दिस स्टोरी। वो है, मतलब लोग जो है ना मुझे ये बोलने लग गए कि आप हमें कहाँ लेकर आ गए। हाँ, मतलब मैं आपको वहीं लेकर आया हूँ जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बता रही है, हाँ, ठीक है। मैं हाँ। कोई अपने मन से कोई जगह जो है ना मैं नहीं लेकर आया। इट्स जस्ट द प्लेस व्हिच यू हैव चूज़न टू ट्रैवल, और यही वो जगह है। मैंने आपको पहले दिन के ब्रीफिंग में बताया था प्लस कि ट्रिप का एक्सपीरियंस ही वही है। Yes. अगर आप लद्दाख जैसे Yes. एक्सट्रीम जगह पे जा रहे हो Yes. तो ऐसे टेरेन्स तो होंगे डेफिनेटली। Right. हाँ, तो फिर भी लोग जो है ना वो बोलने लग गए कि नहीं वी डोंट वांट टू स्टे हियर, यहाँ पे बस कैंप है। ना ठीक है, फिर आपको अगर कोई यहाँ पे 5 स्टार होटल दिखता आप बता दो, मैं फिर कर दूंगा, मतलब। तो इसी बीच में मैं थोड़ा सा अपने स्टाफ, वहाँ के स्टाफ के पास बैठा हुआ था कि क्या करना है। सो द गर्ल हु वाज गेटिंग सिक, तो उसकी दोस्त आती है मेरे पास, एंड स्टार्टेड मतलब ऐसा नहीं था कि कंप्लेन कर रही थी, बट शी वाज मोर ऑफ फ्रस्ट्रेटेड ऑफ सीइंग हर, हाँ, कि भाई वो नहीं बोल पा रही है, उसके होठ देख तू एकदम बिल्कुल ही सूख गया है, शी इज नॉट कंफर्टेबल इन दिस सेटअप, हाँ, और जो भी है तू क्या कर सकता है, क्या वो तो मेरे से बोल रही है कि मुझे भाई कोई बंदा अभी ला दो, मैं उसके साथ जो है ना सेक्स कर लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। व्हाट? तू करेगा उसके साथ सेक्स? एग्जैक्टली दैट्स द रिएक्शन। क्योंकि मैं भी उस टाइम पे स्टन हो गया था, यार ये कैसा मतलब ये है, आदमी को सांस नहीं आ रही है, और हाउ What is this twist in the story? आई ऑल ऑफ अ सडन मैं बात कर रहा हूँ, एंड शी केम टू मी एंड स्टार्ट की, प्रशांत तो उसकी हालत देखा है क्या, देख वो कैसी है, उसकी ऑक्सीजन चेक कर, उसका ऑक्सीजन ये हो रखा है, होठ सूख रहे हैं उसके। मेरे पास आके बोल रही है कि मुझे दारू दे दो, एक लड़का बुला दो, मैं एकदम बढ़िया सेक्स करूँगी, खुश हो जाऊँगी मैं। ये क्या तरीका है भाई, ये कोई आखिरी इच्छा है क्या कि भाई मरने से पहले मुझे नहीं, दिस इज नॉट। मैं देखता हूँ मैं और क्या कर सकता हूँ, लाइक और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ, फर्स्ट प्रोफेशनल बाउंड्रीज एंड ऑल, और oh my god, और professional boundaries and all. दो But बच्चों, मतलब weren't you shocked that like कि what kind of this was the first request time. was this? This was the first time, and I know that this was just to like make me aware of the of her health is getting serious, कि ऐसे पागलों जैसी बातें कर रही है, इसका दिमाग घुमा हुआ है। Okay. That this was the thing which actually she wanted me to understand that कि भाई वो कुछ भी बोल रही है, ठीक है, तुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाई, ठीक है। फिर मैं गया उनके पास, उनके लिप्स बिल्कुल ही ड्राई हो रखे थे, एंड आँखों के पीछे, आँखों के पास जो है ना Shouldn't be laughing. अरे यार Lips dry हो रखे अरे थे। प्रशांत ने social service की। बिकॉज आइज वाइज पे बिल्कुल ही जो है ना गड्ढे पड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि जब व्हेन आई चेक्ड हर एट दैट टाइम इट वाज 42 SpO2 रीडिंग व्हिच वाज डेडली, एंड अगर वो रात को रुकती वहाँ तो शी कुड हैव डाइड। बट देन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब मैं ये सोच रहा हूँ वहाँ पे कि क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मुझे अगला नेटवर्क जो है ना वो बारालाचला क्रॉस करके मिलेगा, जिस्पा में मिलेगा, ठीक है। उससे पहले मुझे कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा है। मुझे ये तक नहीं पता है कि क्या हम लोग बारालाचला आज रात को क्रॉस कर भी पाएंगे कि नहीं। तो बट
थैंक्स टू गौरव भाई, चिराग भाई, उन्होंने बस विदिन लाइक 15 मिनट्स उन्होंने बोला कि प्रशांत तुम्हारी कैंप्स के अरेंजमेंट कर दिया है मैंने जिस्पा में ही, तुम जाओ वहाँ So पे. the girl was safe, and so was the entire yes, group. yes, yes. Okay. Weird stories, weird stories. I think Prashant, Weird. yours has been like extremely weird. Weird stories, Huh? yes. You have something with women creating problem for you. You are a chick magnet, but in a very problematic way. No comments. So thank you, Prashant. I think that was very interesting. I am sure लोगों को जिनको लगता होगा कि टीम कैप्टनसी तो बड़ी मस्त कूल सी जॉब है, I think they have seen through these stories, they have seen कि you know, the human side of it, the difficulties, that stories that you cannot even imagine, situations that you can't even imagine. So thank you so much for being on Scene Kya Hai and sharing your scenes, which I think were extremely explicit. So we'll see what happens in the final cut. तुम्हारे मम्मी पापा को पता है ये सब stories? चलिए ठीक है. Thank you so much, Prashant, for you so being much. on Scene Kya Hai, and all the best for all your future travels. And I hope कि तुम्हारी लाइफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और कम हो, तुम्हारी जो ट्रिप्स पे लोग आए उनकी कुंडलियाँ सॉर्टेड हो. I wish this too. Thank you so much for inviting. अखिलेश थापा. Hi Akhilesh, welcome to Hi. Scene Kya Hai. Thank you so much. Akhilesh here. I'm from Dehradun originally. I've been in the industry for the last 10 years. Trip leading alone, I've done it for 7 years across the domestic and inbound sector, and north, south, east, and west of the country, and some parts of Nepal. As I was researching about you, I got to know that there have been some very scary encounters with you in Rajasthan and Chandigarh. So I think let's begin the episode with what those stories were about. When I was working in the inbound industry as a tour leader, so inbound में क्या होता है, then you're catering to foreigners, right? So they're here for the local experience, they're here for the Rajasthans. I mean, that is the picture they have in mind, and that is what sells, honestly. So there were we used to stay at these family-run, princely-run hotels. So basically, what would happen was they would be like these 100-room properties built on top of a hill in the middle of nowhere, and they would shut down maybe most of the rooms, and 10-15 rooms would be open Only for the guests, Yeah. okay. So, and then you had that experience, beautiful experience being in Rajasthan, and you're on top of a fort, and then you have stories to share. So, in spite of getting a proper room, there were 2 of us trainees and 1 senior tour leader. We were not going to our rooms to sleep. So I was waiting. It's 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. The guests have gone to bed, and I think now it's time to go to bed. And I'm basically a morning person, so I was really looking forward to, get to bed and just go to sleep. And this place was around 200 years old or 250 years old, and it had history about it. So, but we were just chit-chatting below near the guard room and sitting with the staff and having a good time. So at the end, I decided, I got up, okay, enough is enough. I need sleep. I'll go to my room. But the moment I started doing that, I was always stopped by the staff or the guard. But my senior tour leaders did not say a word about it. So after being stopped twice, I just asked, why are you not letting me go? Why are you, like, everybody was like, sleep in the open, let's sleep down. Okay. And I'm not a fan of that. I'm like, when we have a room, we have a bed, why not? So then the guard asked me in a very weird sort of a way, which I did not think about until the next day. He asked me if I was afraid, if I feel afraid to sleep alone or this and that. So I didn't make much of it. तो मुझे तो लगा generally it's just and I was too sleepy to even think about it. So I said, no, I'm not afraid. I just need my bed. I need to go to bed. So I went there, slept, woke up at around 5-6 a.m. in the morning, and then went to breakfast. We were checking out at around 11ish or so. So, like, usually Westerners are not very, they have a very different belief system, and many of them don't believe in the idea of spirits and ghosts. So,
but then I could sense something had happened, and people were like talking to each other. First, I thought probably something was wrong with the services, or they didn't like the place. So I ensured everything was good, checked on everyone in the night, also in the morning, also. But a couple was a bit. I mean, they were the ones I could sense that, because you could read the body language. Things didn't go well last night, so I just personally I went to them, and then we started talking, and could not come directly to the topic because again didn't want to uh, s- you know make them think otherwise. Even if it happened to them, I didn't want them to so they, in fact, after talking about it, other things, they came to the topic, and they were like, I think there was something going on in the room. I think there were people knocking on the door, and we checked and nobody was around. We spoke with the staff, and it was just two or three people around, and they got they experienced the bed moving a Move. bit, Wow. and which, like I did the first time, they did not pay much attention to. But after a while, the bed started getting more sort of, I mean, it was as if नीचे से कोई धक्का दे रहा है, like literally, like lifting the bed up. And at one point, you could look down the bed and think there's somebody down. But then if somebody has the strength to actually lift two people up in a king size bed, I mean, it doesn't speak of. So you naturally doubt if that was really somebody down there or not. So they kept talking about it. Now the dilemma for me was if I should accept that story or if I should let it be. But if I did let it be, it would come on to the credibility of the company on a whole, or me as a tour leader. And also at the same time, I had to ensure that they felt not taken care of. So yeah, we spoke about it, spoke about the possibilities of how it happened. I had to be very careful to also be part of the conversation, but at the same time not point out or not let the conversation go to that end, and also ensure that they felt heard. So after that, next, luckily there was only one stay at a heritage sort of a Okay, old okay. place. So after that, things got better. I ensured they had a good time, and they got the best rooms wherever possible, and I ensured I also got a room close to them so that in any case anything happened, at least I was around. So these things. Rajasthan is a house of such Raj, stories, I feel. Is there any other, like any other encounter, or maybe your friends have experienced something of that sort? क्योंकि Rajasthan. राजस्थान में हर बंदे का कुछ ना कुछ ऐसा, I'm very sure कि कोई ऐसी story निकल के No, आती I है. tell you from my experience, being from the mountains myself and having worked in Rajasthan, it's mostly places like Rajasthan and places in the mountains. If you really believe in spirits and ghosts and all, it's usually souls that do not, who either have an untimely death or something bad has happened at that place. So usually mountains why I say is because they had a huge British how do I say, a lot of Britishers during the British Raj times, they used to stay in the mountains because it was close to their hometown environment in terms of nature and I have had an experience in Shimla, I remember. So I yeah. was just, I was at one of these places, hotel tha, and I was sleeping. And snowfall हो रहा था बाहर, ठीक है? And I don't know what happened during my sleep while I was sleeping. Either I was dreaming about it, that I could see a man, like, dressed in that proper ऐसा वो British वाला ऐसा hat वाट के साथ में, and I felt that, both my hands got clenched. Right. Okay, and I couldn't move. I tried to scream, but I knew कि मैं शायद असली में शायद नहीं चिल्ला रही हूँ या मैं सपने में चिल्ला रही हूँ. It was part sleep paralysis, but it was also that the imagination of a man holding me by both my wrists,
So that was one experience that I've had in Shimla, and I feel like a lot of people that I know have a lot of stories about Shimla, for Of that course. matter. And I think that is where it connects that Yeah. Britishers का जो time था वहाँ पे. I don't know why is it like, why is that Victorian place haunted? I think a lot of atrocities happened in those times. So that is a different conversation. But even in Mussoorie, if you've heard of this famous place called Landau Cant, so that is until now, in spite of being so popular, being so commercial, after a certain point of time in the night, people are not recommended to go out. Hoteliers, homestays, they actually advise tourists not to. Even we don't. I mean, it's like क्यों फालतू मतलब taking पंगा. So these things. So Rajasthan also similar, like because there are places that are so old. So there was this another other time working with the same. I mean, I went to this other Haveli slash fort In Rajasthan? in Rajasthan. So again, at a very far off place, uh, almost like a village, and on top of a hillock, a hill or a hillock, and then on top of it. So again, they had you heard many stories from. We would hear a lot of stories from our colleagues about this place, about the stories, and so when I went there, I only went there once. And when I went there, I was already like prepared. Ki, same strategy, like Drink, have a good time, sleep. drink, हाँ. sleep. Would you recommend that to your travelers? Not on camera, but yeah. On the professional front, you won't. Yeah. Personal front पे कर दोगे, है ना? Yeah, but then again, we were pretty responsible also. We did drink, we did have a good time, and You don't have to be so politically yeah, correct. so in case our viewers are, so at that place, how the setup was, I'll tell you. So it was on top of a hill, a proper fort. Just imagine, like in the movies, you see a proper this thing, pura fort wala area. Then there's a cemented tennis court inside the place. Okay. राइट आगे पीछे पूरा जंगल है कीकड़ वाला और नीचे के दे यूज्ड टू बी पुराने टाइम में दे यूज्ड टू हैव दीज टनल्स going below the city or the village leading to another place, basically escaping routes in case the enemy attacked. Okay. So this place had one of those routes, so that they had like closed it down. So there were stories our colleagues would say when परछाई दिखी किसी को मतलब दिन दहाड़े middle of the day. So ऐसे stories. So this time I was like okay, अब जाना तो है, काम तो काम है, it's part of the job. So can't sort of have to give the best experience to the travelers and the guests and ensure everything is in place. So we went there, just a one night stay. So there was this English guy. So Australians and English love to play cricket. They understand, they watch, mostly, not all of them. So we played cricket, involved the staff, everyone. So by the evening time, everybody was tired, had dinner, didn't have a bonfire, but just like had a good time, talked, spoke to each other. And I had forgotten about it. I was so happy in my own world and happy in my tour leading world, trip captain world, that everything is going well. And a very good friend of mine who was also a colleague, so he called me up and he's like, क्या चल रहा है? तो I was like, बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, all good. And then he said, भाई वहाँ ध्यान रखियो, ऐसा ऐसा होता है. I was like, then I can't say those words over here, so I gave him a lot of bad words. I bad mouthed him and told him, bhai, I was like happily, I'd genuinely forgotten about the things. तो वहाँ पे एक क्या था situation which caught my eye was near the tennis court. So imagine this is the tennis court place. The rooms are here, the restaurant is here, and then just behind the rooms there was a mazar. So it was very, I mean, I don't know, the people would not understand, the guests wouldn't understand because they come from the Western world. But us being us, I was a bit, why would they have a mazar in a, Rajput
sort of a हाँ, place हाँ, which has हाँ. such history of, you know. So then it hit me that probably, you know, for the other reasons which can't be protect? probably they had, and of course the same story like the other places. The staff never told the stories behind it, so we were just so, and my room was right next to the first room closest to the Mazar was my room. And so in Rajasthan, like good, I mean, Havelis and hotels, they have those colored windows and those doors and windows that have these 4 by 4 feet का blocked जिसमें से windows. मंजोले का देखती थी. हाँ, हाँ. those, and colorful, very beautifully made. I हाँ. mean, beautiful accommodation and all. And so again, after that call, I had to like just have another beer, and then I went to my room, tried to forget it, and I was like, "Bhai, ab dekhi jayegi. I'll just go to sleep." It was already 11ish or something, so went to my bed and slept it off. Then around, I don't know, after 3 or 4 hours, I don't remember the time, but I do believe it was like after 3 or 4 hours, I again the same parchai thing happened, like you said, Shimla में जैसे हुआ था. I woke up suddenly, and वो दरवाजे में शीशा है, तो you could see somebody or someone there, and then just going by. So it happened twice. So first time I thought probably I was sleepy, probably I'm dreaming. The second time it happened again, I definitely thought I am not dreaming right now, and neither am I. I am totally sober. Something is wrong. So the same thing happened. It happened twice, but then so I just How are you lucky every time, Akhilesh? I am not lucky. I just ignore things like these that happen, and I just So guys, coming from a professional team yeah, captain, अगर कभी भी ऐसा कुछ experience करो तो ignore, जाने दो. I just believe you should not be too hero and just go जैसे movies में दिखाते हैं कि भैया just जो हो रहा है, Curiosity kill the cat. हाँ, yeah, just it happens, just move around, just I mean ignore it and don't pay heed, and don't challenge. It's like facing like if you face a dog or any animal on the streets, so rather than just eyeballing them and just, you know, just सर नीचे करके निकल जाओ. So that is my philosophy out here. So that is what has kept me safe for so far. So that night I just, second time it happened, मैं अब तो कुछ हो रहा है, I just turned the other way around and रजाई ओढ़ के I just went to bed. So But it's very difficult, यार. Once you know कि something unnatural is happening, yeah, so and you're experiencing it, and not just once, so many times. yeah. तो to prepare, like, you know, to think like that, अपना mindset को वैसा बनाना या खुद पे ऐसा सोचना, I think it's very difficult. It's very challenging. It is. I'm sure it comes from the fact that there's no choice. Also, so rather than, you know, thinking about it much, so just deal But with so it. I think our takeaway from this conversation is कि अगर कभी भी कोई ghostly encounters होते हो तो please drink and forget it. Would Akhilesh say that? I think it's a tried and tested thing. So he's saying out of his experience. So I don't know, see if it works for you. And thank you so much, Akhilesh, for sharing your scenes on Scene Kya Hai. And all the best with your journey on, and wish you like a lot more journeys and travel and a lot more stories ahead. Thank you so much. Thank you. So guys, that was all on today's episode of Scene Kya Hai. It was a special one with very special guests. I hope you guys enjoyed it and you loved the stories as much as we did bringing it out for you. If you liked any of these stories, do let us know in the comments. You know the drill. Like, share, subscribe, and stay tuned for the next episode of Scene Kya Hai. Till then, take care. Bye-bye.